Chapter 9 Redemption of Debenture. Redemption means repayment of debenture. Debenture is a long term debt for the company, and at the end of its stipulated time period, means जब required time period over हो जाता है, then debentures amount is redeemed to debenture holders. That stipulated time period is mentioned in prospectus at the time of issue of debentures. Means it is known to public कि कब डिबेंचर का पैसा उनको वापस मिलने वाला है. तो ये चैप्टर, दिस चैप्टर पर्टिकुलरली डील्स विद द redemption procedure of debenture. Now at the time of redemption of debenture, liquidity of company is to be utilized for the payment of debenture towards debenture holders. तो ये लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी में पहले से ही प्रायर प्रिपरेशन के तौर पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड and sufficient amount is invested in debenture redemption investment. Means that amount is invested outside the company. So at the time of redemption of debenture, investment can be sold off in open market and amount can be recovered, and that amount can be utilized for repayment of debenture. तो इस तरह से ये कंडीशंस पहले समझनी हमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए. कंडीशंस फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, it is created out of statement of P&L first of all, and conditions is it depends on type of organization. If it is case of all India financial institutions, banking companies and other financial institutions, requirement is no, means no DRR is created. In case of listed companies other than AI, means all India finance companies, banking companies and finance companies, again not required. Unlisted companies other than banking, all India finance companies and finance companies, again not required. Only in one type of company, that is other unlisted companies, means unlisted companies other than NBFC and HFCs, means non-banking finance companies and housing finance companies. तो याद हमें ऐसा रखना है कि अनलिस्टेड कंपनी हो और अदर देन NBFC और HFC हो, सिर्फ उसी में 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर, 10% of the face value of outstanding debenture, means standing debenture in the balance sheet, is to be created for debenture redemption reserve. एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलिस्टेड कंपनी and other than NBFC and HFC, 10% is the required amount to be created. 10% of face value of debenture is to be created by way of debenture redemption reserve. Next point is conditions for debenture redemption investment. तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट में no DRI, means investment is not required in case of all India financial institutions, banking company and other financial institutions. सब में DRI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो DRI की रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड में DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी विच इज अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो लिस्टेड कंपनी हो अदर देन दिस, उसमें रिक्वायरमेंट है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की. अनलिस्टेड कंपनी हो तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड अदर अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अदर देन AI, मीन्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अनलिस्टेड कंपनी हो अदर देन NBFC एंड HFC, उसमें रिक्वायरमेंट है. यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ये दो कंडीशन में परचेज किए जाते हैं. डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड इन दिस टू कंडीशन. फर्स्ट, लिस्टेड कंपनी अदर देन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, लिस्टेड कंपनी अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड अनलिस्टेड अदर देन नॉन बैंकिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. ये दोनों में इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाता है. और DRR सिर्फ क्रिएट होता है एक ही कंडीशन में, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन NBFC एंड HFCs. परसेंटेज है, जो परसेंटेज ऑफ DRR है वो 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए परसेंटेज है वो है 15% ऑफ द फेस वैल्यू, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम इन दैट पर्टिकुलर ईयर. यानी जो पर्टिकुलर ईयर में डिबेंचर रिडेम्पशन हो रहा है उसके 15%, उसकी फेस वैल्यू के 15% जितनी अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है उसमें. तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज फॉर क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑलवेज क्रिएटेड ऑन 31st March बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L. इसलिए स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये एंट्री होगी. यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, यानी 10% at least to be transferred to DRR from statement of P&L for outstanding debenture. यानी कंपनी की बैलेंस शीट में जितने डिबेंचर्स है उसकी 10% अमाउंट DRR में ट्रांसफर होगी ऑन 31st March. हमें
इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कौन से ईयर में कितनी अमाउंट ट्रांसफर हो रही है. इन टोटल 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी ट्रांसफर टू DRR. देन इन्वेस्टमेंट की एंट्री है. फॉर परचेज ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इट्स डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंड दैट अमाउंट इज रिक्वायर्ड 15%. परसेंटेज ध्यान रखना है. 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर. उस ईयर में जितने डिबेंचर हम रिडीम करने वाले उस पर्टिकुलर ईयर में, उस डिबेंचर के 15% फेस वैल्यू का 15% इज टू बी इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. और जो इन्वेस्टमेंट की डेट होगी, इट कैन बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल. यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में उस पर्टिकुलर ईयर में जितने फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम होने वाले, उसका 15% अमाउंट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर दैट एंट्री इज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक. जब रिडेम्पशन की डेट आएगी, उस डेट पे इस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, उसके लिए एंट्री होगी फॉर सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ सेल, मीन्स रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. तो इस तरह से DRR और DRI की कंडीशन याद रखनी है. DRR में एक ही पॉइंट पे क्रिएट होता है DRR, और वो भी 10% in case of unlisted companies other than NBFC and HFC. Only in this condition 10% amount is required. And in case of investment, two situation: listed company other than financial banking institutions and unlisted other than non-banking and housing companies. तो ये कंडीशन याद रखनी है DRR और DRI के लिए. नाउ नेसेसरी क्वेश्चंस है. फर्स्ट जो स्लॉट है क्वेश्चंस का, उसमें DRR के लिए हमें पूछा गया कि कब कितनी अमाउंट क्रिएट होगी DRR के लिए. तो फर्स्ट केस है सनफ्लावर लिमिटेड. ये लिस्टेड कंपनी है, इसके लिए यहाँ पे DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अब हमारा टारगेट एक ही होगा कि अनलिस्टेड होनी चाहिए और अदर देन NBFC एंड HFC होनी चाहिए, तभी ये 10% की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी. तो पहला जो सनफ्लावर लिमिटेड का केस है वो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए DRR नॉट रिक्वायर्ड. दूसरा केस है उसमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसलिए हमें चेक करना है कि वो NBFC HFC है कि अदर देन NBFC HFC है. तो यहाँ पे केमिकल और फर्टिलाइजर की कंपनी है, यानी अदर देन NBFC और HFC हुआ, इसलिए 10% की प्रोविजन यहाँ अप्लाई होगी. 5000 डिबेंचर है, 12% इंटरेस्ट का रेट है और 500 रुपए की फेस वैल्यू है. तो 5000 डिबेंचर एंड फेस वैल्यू ऑफ 500, तो टोटल फेस वैल्यू इज 25 लाख. ये जो टोटल फेस वैल्यू है डिबेंचर की, उसका 10% यानी 25 लाख का 10% यानी 2,50,000 इज टू बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सैमसंग लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी. अगेन तो अनलिस्टेड में अट्रैक्ट होगा ये प्रोविजन इफ इट इज अदर देन NBFC एंड HFC. तो अनलिस्टेड कंपनी है, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट अदर देन NBFC एंड HFC. अब इसमें दो कंडीशन है. कंपनी अनलिस्टेड है, अदर देन NBFC एंड HFC है, इसलिए 10% का कंडीशन अप्लाई होगा. लेकिन यहाँ पे केस 1 में 1 लाख डिबेंचर 10% ऑफ 100 ईच. अब ये फुल्ली कन्वर्टेबल है. अब यहाँ पे डिबेंचर का रिडेम्पशन ही नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे कोई लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, इसलिए रिजर्व नहीं क्रिएट होगा, ना ही इन्वेस्टमेंट होगा. इसलिए इन केस ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, इन केस ऑफ fully convert, even if it is of unlisted company other than NBFC and HFC, it is fully convertible debenture, so no DRR is not required. In second case, 20,000 debenture, 10% debenture of 100 each, or 25% is to be redeemed and balance is to be converted into new debenture. यानी यहाँ पे 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, यानी 20 लाख के डिबेंचर है, उसका 25% रिडीम किया जाएगा फ्यूचर में, और रिमेनिंग यानी 75% विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू टाइप ऑफ डिबेंचर. इसका मतलब जो कन्वर्टिबल है उसके लिए DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो कन्वर्टिबल नहीं है जिसका रिडेम्पशन होने वाला है यानी 25%, यानी 2,20,000 डिबेंचर इंटू 100 ईच, 100 की फेस वैल्यू यानी 20 लाख रुपए, 20 लाख के 25% यानी 5 लाख रुपीज के डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं. तो उस 5 लाख रुपए की लिए रिक्वायर्ड DRR होगा, उसका 10%, ये जो डिबेंचर रिडीम होने वाले उसका 10%, 50,000 इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR. नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो कोई भी हाउसिंग की फाइनेंस की कंपनी हो. यहाँ पे बोला गया कि अदर देन हाउसिंग फाइनेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसका मतलब हाउसिंग कंपनी, इसलिए DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के अंदर भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नो DRR. नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है,
इसलिए इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है SBI, ये बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसमें भी फाइनेंस कंपनी है इसलिए इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार फाइनेंस, ये भी अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, बोला गया है कि अनलिस्टेड है पर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। हम सिर्फ अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और HFC में ही 10% क्रिएट करेंगे, इसलिए यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ऑफ DRR नो रिक्वायरमेंट। स्टार फाइनेंस में अनलिस्टेड NBFC, सो नो DRR। क्वेश्चन नंबर 9 में ए लिमिटेड, जिसके 1008% डिबेंचर 100 ईच issued on 1st July 2018 and redeemable at 6% premium on 31st December 2020. Now, rupees 6,000 transfer to DRR on 31st March 19 and balance remaining on 31st March 20. अब समझते हैं यहाँ पे, ये जो कंपनी ए लिमिटेड, उसके 1000 डिबेंचर 8% इंटरेस्ट रेट और 100 रुपए का एक, यानी टोटल फेस वैल्यू 1 लाख रुपए हुई। 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR हुआ। उसमें से 6,000 इज ट्रांसफर टू DRR ऑन 31st March 19 एंड रिमेनिंग ऑन 31st March 20, और रिडेम्पशन की डेट है 31st December 2020। तो समझते हैं ये टाइमलाइन से पहले हमारा इशू का डेट है 1/7/18, 31st March 19 पहली ईयर एंड डेट आएगी जब 6,000 ट्रांसफर होगा DRR में। फिर 31st March 20 सेकंड ईयर एंड डेट आएगी, इसमें 4,000 ट्रांसफर होगा DRR में। फिर जिस ईयर में रिडेम्पशन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडेम्पशन की डेट है 31st December 20, तो उस ईयर की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, यानी मोस्ट प्रोबेबली हम 30 अप्रैल ही सिलेक्ट करते हैं, उस डेट पे इन्वेस्टमेंट परचेस किया जाएगा। फिर 31st December 20 पे रिडेम्पशन की डेट पे इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा और बेचने के बाद डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होगा और एट लास्ट DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाएगा। ये इसकी प्रोसेस है। तो सबसे पहले एंट्री में इश्यू की एंट्री आएगी 1 जुलाई 18 की। अब यहाँ पे पहली एंट्री आएगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। यहाँ पे 100 रुपए का एक ऐसे 1000 डिबेंचर है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, इशूड एट पार है, यानी पहले 100 रुपए की फेस वैल्यू कलेक्ट होगी, इसलिए बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट 1 लाख रुपीज, डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू 8% डिबेंचर 1 लाख यहाँ पे ट्रांसफर होगा। फिर ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो 2 डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम आएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 6% है, 1 लाख का 6% 6,000 डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में, और सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये टॉपिक ऑलरेडी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगी, ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट आएंगे, लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। नाउ रिक्वायर्ड DRR रिक्वायर्ड इज 1 लाख रुपीज का 10%, क्योंकि 1 लाख इज टोटल फेस वैल्यू, उसका 10% यानी 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। उसमें से 6,000 पहले 31st 19 को ट्रांसफर होंगे, इसलिए 31st 19 को स्टेटमेंट ऑफ PNL से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 6,000 ट्रांसफर होंगे। फिर नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट यानी 4,000 जो बाकी रहे वो 31st March 20 में ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए अगेन स्टेटमेंट ऑफ PNL टू DRR 4,000। देन 30th अप्रैल 2020 में, क्योंकि अब रिडेम्पशन का ईयर आ गया है, 31st December 20 में रिडीम हो रहा है, और कंडीशन यही है कि हमें 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, जिस ईयर में जितने अमाउंट के डिबेंचर रिडीम होने वाले हो उसके 15% का इन्वेस्टमेंट कर देना है DRI में, और उसके लिए डेट है 1/4 से 30th अप्रैल, यानी 1/4 से 30/4 के बीच में ये इन्वेस्टमेंट कर देना है। यानी लास्ट मैंडेटरी डेट है 30 अप्रैल, वो 1 अप्रैल को भी कर सकते हो और लास्ट डेट आएगी 30 अप्रैल। यहाँ पे हमने 30th अप्रैल को ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, फेस वैल्यू है 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का पूरा रिडेम्पशन हो रहा है यहाँ पे, जितने अमाउंट के, यहाँ तो एक साथ लमसम में रिडीम हो रहा है, लेकिन कई बार पार्ट्स में रिडेम्पशन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जितनी अमाउंट के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसका 15%। जब DRR की बात आती है, DRR क्रिएट करने की बात आती है 10%, तब वो टोटल जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है यानी स्टैंडिंग डिबेंचर जो बैलेंस शीट में उसका 10% होता है, और ये जो 15% की प्रोविजन है इन्वेस्टमेंट की, वो जितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसका 15% आएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली टोटल अमाउंट रिडीम हो रही है डिबेंचर की 1 लाख रुपए, इसलिए उसका 15% यानी 15,000 रुपए डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में जाएगा टू बैंक 15,000। फिर 31st December 20 को पहले इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 15,000। बेचने के बाद डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट होगा, उसके लिए एंट्री आएगी 8% डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स,
1,06,000, 1,06,000 total, and debenture holders to bank 1,06,000. After this complete procedure, DRR is now not required, so it will be transferred to general reserve. इसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व 10,000. Now we are asked to prepare debenture redemption reserve account and debenture holders account. तो पहले DRR अकाउंट ओपन करते हैं. उसमें फर्स्ट एंट्री 31 मार्च 19 को आई है स्टेटमेंट ऑफ PNL टू DRR, इसलिए DRR की क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL 6,000. उसी डेट पे बैलेंस कैरी डाउन होगा. नेक्स्ट डेट यानी 1 अप्रैल 19 पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 31 मार्च 20 लास्ट डेट पे एक और इंस्टॉलमेंट 4,000 का क्रिएट होगा, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL 4,000. फिर से यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 10,000 और 1/4/20 पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. फिर आफ्टर दिस एंटायर प्रोसीजर ऑन 31st December 20 दिस DRR इज ट्रांसफर टू GR. तो 31st December 20 में टू जनरल रिजर्व 10,000. इस तरह से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विल गेट क्लोज स्क्वायर्ड अप बाय अमाउंट ऑफ 10,000. डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो होल्डर्स के लिए ये एंट्री आएगी 31st December 20 में. डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स है, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स की क्रेडिट साइड पे बाय 8% डिबेंचर 1 लाख and by debenture redemption premium 6,000, and on the same day this amount is paid to debenture holders. तो debenture holders to bank में holders के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा to bank 1,06,000, and with the amount of this 1,06,000 this debenture account holders account will get closed. नेक्स्ट क्वेश्चन है P लिमिटेड, उसमें 8% डिबेंचर है 50 लाख रुपीस के. ऑलरेडी DRR का बैलेंस दिया गया है 1,50,000. ये दो बैलेंसेस 1 अप्रैल 21 के है. रिक्वायर्ड DRR टू बी क्रिएटेड ऑन 31 मार्च 22. ऑब्वियसली 1 अप्रैल 21 के बैलेंसेस है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एंड डेट 31 मार्च 22 की आ रही है. उस दिन हमें रिक्वायर्ड DRR क्रिएट करना है. 50 लाख रुपीस के अगर डिबेंचर है और उसका 10% करे तो 5 लाख की रिक्वायरमेंट है DRR की. उसमें से 1,50,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी हमें 3,50,000 जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्रिएट करना है. और उसके लिए डेट अपने पास एक ही आएगी 31 मार्च 22. तो 31 मार्च 22 को पहले स्टेटमेंट ऑफ PNL टू DRR क्रिएट करेंगे. कैसे आएगा अमाउंट? 50 लाख का 10%, हमेशा 10% ही आएगा DRR का रिक्वायरमेंट. जो स्टैंडिंग डिबेंचर्स है फेस वैल्यू है उसकी, उसका 10%. 50 लाख के डिबेंचर है, उसका 10%, 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 1,50,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो अब हमें 3,50,000 इज टू बी क्रिएटेड. तो उसके लिए एंट्री आएगी स्टेटमेंट ऑफ PNL टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 22. नाउ रिडेम्पशन की डेट 31 मार्च 22 पे है, ये क्रिएट हुआ है DRR, उसका रिडेम्पशन करना है डिबेंचर्स का. उसके लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के यानी 30 अप्रैल 22 पे इन्वेस्टमेंट पहले हम परचेस करेंगे. डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 50 लाख का 15%, हमेशा 15% लेना है हमें. जितने अमाउंट का डिबेंचर रिडीम हो रहा है उसकी फेस वैल्यू का 15%, फेस वैल्यू का 15%. 50 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसका 15%, 7,50,000 के इन्वेस्टमेंट हम परचेस करेंगे 30 अप्रैल 22 को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक. और फिर रिडेम्पशन की डेट पे यानी 30 सितंबर 22 पे बैंक टू DRI यानी इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा. 30 अप्रैल को परचेस करेंगे और 30 सितंबर को बेचेंगे बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 7,50,000. ऑन दैट डेट डिबेंचर होल्डर्स को हम पैसे चुकाने के लिए पहले ड्यू करेंगे अमाउंट 8% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स and debenture holders to bank. Amount is 50 lakh. Total face value is repaid, and at last, after this procedure get completed, there is no further use of DRR. So DRR will be transferred to general reserve. 5 lakh rupees will be transferred. 5 lakh कैसे आएंगे? पहले 1,50,000 का बैलेंस था, 350 हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया, इसलिए टोटल अब हो गया DRR 5 lakh, and it will be transferred to general reserve. We are asked to prepare DRR account in this question also. तो उसके लिए पहले 1/4/21 का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है 1,50,000, वहां से अकाउंट की शुरुआत होगी. 1/4/21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. देन 31 मार्च 22 पे रिमेनिंग 350 क्रिएट किया है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL 31 मार्च 22 पे 3,50,000 की अमाउंट आएगी. और उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन होगा 31 मार्च 22 पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख, एंड ऑन 1/4/22 द सेम बैलेंस इज ब्रॉट डाउन by balance brought down 5 lakh. After completion of entire procedure on 30th September 22,
दिस बैलेंस ऑफ DRR इज ट्रांसफर टू GR, इसलिए DRR में डेबिट साइड आएगा टू जनरल रिजर्व और DRR अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है NC लिमिटेड, उसमें 10 लाख रुपए के डिबेंचर 6% डिबेंचर ऑफ 50 ईच issued at 8% premium on 30th June 22 and redeemable on 30th June 23। 30 जून 2022 को इशू हुआ है, 30 जून 2023 को उसका रिडेम्पशन हो रहा है। तो सबसे पहले इशू की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, दिस डिबेंचर इज इशूड एट 8% प्रीमियम। 10 लाख के डिबेंचर और 8% प्रीमियम, तो 10 लाख का 8% 80,000 रुपए 80,000, इसलिए यहाँ पे पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट में अमाउंट आएगा 10,80,000। फिर ये 10,80,000 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, एक है डिबेंचर की अमाउंट 8% डिबेंचर 10 लाख रुपए एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000। नाउ ये जो कंपनी है NC लिमिटेड वो लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी में कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उसमें DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी और वो भी अदर देन NBFC एंड HFC में ही 10% DRR के प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये लिस्टेड कंपनी है इसलिए इसमें DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में, ध्यान से, लिस्टेड कंपनी में डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट परचेस करना होगा यहाँ पे। इसलिए 30 अप्रैल 23 पे, क्योंकि रिडेम्पशन की डेट है 30 जून 2023, इसलिए 30 अप्रैल 2023 में उसी ईयर की अप्रैल की लास्ट डेट पे इन्वेस्टमेंट परचेज होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और वो अमाउंट होगी 10 लाख की फेस वैल्यू, उसका 15% यानी 1,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट परचेज होंगे। फिर 30 जून 2023 को रिडेम्पशन की डेट पे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000, और फिर 30 जून को जब रिडेम्पशन की डेट है उस दिन पे पहले अमाउंट ड्यू होगा रीपेमेंट के लिए। 8% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, 10 लाख की अमाउंट ड्यू होगी, फिर उसको रीपे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 10 लाख रुपीस। जो DRR टू GR वाली एंट्री आई अब तक वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि DRR क्रिएट ही नहीं हुआ है। क्रिएट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी का केस है और लिस्टेड में DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, बैंकिंग कंपनी की बात है, इसलिए बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर कभी भी DRR क्रिएट नहीं होता, इसलिए उसमें DRI का इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेय लिमिटेड, ये लिस्टेड NBFC है, लिस्टेड कंपनी है और NBFC है। तो लिस्टेड में अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंस और बैंकिंग कंपनी के अलावा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, दिस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो हियर द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 50,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 पे रिडेम्पशन के लिए ड्यू है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 21, सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 21 एंड रियलाइज्ड एट 105%। हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, रियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहले समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्टमेंट की प्रोविजन 15% है, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड इन दैट ईयर टू बी इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच यानी 50 लाख रुपीज के डिबेंचर है। 50 लाख रुपीज का 15% यानी 7,50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, और ये इन्वेस्टमेंट 105% यानी 105% यानी 5% के एप्रिसिएशन पे बेचा गया है। यानी 7,50,000 का 105% हम करें तो 7,87,500 इज द सेलिंग प्राइस और रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सिर्फ रियलाइजेशन वैल्यू के लिए ही पूछा है, एंट्रीज का कोई यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है। सो रियलाइजेशन वैल्यू के लिए ध्यान रखना है। हमें डायरेक्ट बोला गया कि 105% रियलाइज हुआ है, तो पहले हमें निकालना होगा कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ होगा। तो वो फेस वैल्यू का 15%, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है 50 लाख, उतनी अमाउंट का रिडेम्पशन हो रहा है, और उसका 15% 7,50,000 इन्वेस्ट हुआ होगा, और उसका 105% रियलाइज हुआ है, इसलिए 750 का 105% रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट is 7,87,500. Thank you.